اگر انڈیا کو کوئی روکے ہوئے ہے ملیشیا سے لے کر کابل تک اپنا قبضہ نہیں کر لیتا تو آپ کے ایٹم بم کے خوف سے. وہ زاحل کی نسل اور فصل، تو کیا ایٹم بم کا اچار چٹا رہا ہے؟ تیرا ایٹم بم چلے گا کہ نہیں اس کا کوئی گارنٹی ہے؟ تیرے سے GHQ سنبھالا نہیں جاتا ہے، تم لوگ سے شمسی ایئر بیس سنبھالا نہیں جاتا ہے. 6 بندے جاتا ہے دیوار پھلانگ کے 12-13 کو قتل کر کے آ جاتا ہے، اور وہ بھی سیڑھی لے کے جاتا ہے، سیڑھی سے اترتا ہے. کیا حال ہے؟ یہ چلا ہے ایٹم بم کا اچار چٹانے. چٹا اچار چٹا، تو خود بھی چاٹ، تیرے کو آگے آگے میں بہت اچار چٹواؤں گا، تو ٹھہر. اور پاکستان کو اللہ نے بنایا کیوں تھا؟ کیوں بنایا تھا؟ زاحل کے نسل اور فصل. اللہ کے رازوں کو سمجھو. اس پاکستان کو اللہ نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ غزوہ ہند لڑنا ہے. وہ زاحل کے نسل اور فصل، یہ بچوں کو کیا پٹی پڑھا رہا ہے؟ ہاں، غزوہ ہند کے لیے بنایا تھا. وہ زاحل انسان بتا کہ بھیک مانگنے کے لیے بنایا تھا. امریکہ سے 62 سال سے بھیک مانگ رہا ہے، بھیک کی روٹی کھا رہا ہے، ابھی تک ہوش ٹھکانا نہیں آیا. اب تو غزوہ ہند کا اچار چٹا رہا ہے. چل چٹا، کوئی بات نہیں ہے، تیرے کو میں آگے اچار چٹاؤں گا غزوہ ہند کے بارے میں، یا غزوہ پاکستان ہو رہا ہے وہ میں تیرا لال ٹوپی آج کھولتا ہوں، تو ٹھہر. حضور کی اس حدیث میں پورا ہونا ہے کہ ہندوستان پر مسلمان دوبارہ قبضہ کریں گے، اور جس کے لیے پاکستان کو ایک فوجی طاقت اور ایٹمی قوت بننا تھا، یہ پاکستان کے بننے کی وجہ ہے. وہ زاحل کے نسل اور فصل، تیرا فوجی کتنا طاقتور ہے، تیرے کو 65، 71 سیاچین کارگل میں ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ ہاں، تو بھونک رہے یا بیٹھے بیٹھے مار پڑتی ہے تو دم دبا کے بھاگتا ہے امریکہ کے پاس. ہاں، یہاں پہ بیٹھے بیٹھے بھونک رہا ہے کہ ایک طاقتور فوج ملک بنانا تھا، پھلانا تھا، ڈنکانا تھا، اور پیچھے وہ انشاءاللہ کا ایک دم انبار لگا رکھا ہے، جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، خود نے کچھ نہیں کرنا. تو بھونک، تیرا لال ٹوپی میں آج اتاروں گا میں ضرور. باقی نہیں ہے، حضور کی حدیث ہے، لازم ہونا ہے. امید باقی نہیں، ہونا ہے. اس میں انشاءاللہ کی بھی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ حضور کا حکم ہے. اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ شاید اللہ چاہے یا نہ چاہے. حضور نے فرما دیا ہے، ہونا ہے. خلافت اللہ منہاج النبوہ نے بھی قائم ہونا ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ ہونا ہے. اب صرف نصیب ان لوگوں کا ہے کہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اس کو عمل پذیر کریں گے. وہ خوش نصیب کون ہو؟ آج صاحب نسبت لوگ، صاحب اہل بصیرت کہتے ہیں کہ جو اس پاکستان کے دفاع میں ایک اینٹ بھی رکھتا ہے وہ غزوہ ہند میں شامل ہے. اگر ایسی بات ہے تو ان لوگوں کا ٹائم کیوں خراب کرا رہا ہے؟ بھیج دے ان کو اینٹ ڈھونے کے کام کے لیے. ہاں، یہاں پہ بیٹھے بیٹھے یہ اپنا ٹائم خراب کر رہا ہے، اور تو بھی اپنا گردن سیدھا کر، گردن ٹیڑھی ہو جائے گی. تو غزوہ ہند پھر کرے گا کہاں سے؟ گردن تو ایک ہی طرف تیری پھری ہوئی ہے، دوسری طرف تو پھرنے کا لائق بھی نہیں رکھے گا تو آگے. غزوہ ہند اب سرحدوں پر نہیں لڑا جائے گا صرف کہ فوجیں آگے جا کے ٹینکوں سے لڑ رہی ہوں گی، پوری قوم لڑے گی. جنگیں شہروں میں ہوں گی، ہو رہی ہے نا، ہو رہا ہے نا معاملہ شہروں میں. وہ زاحل کے نسل اور فصل، تو کہہ رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ سرحد پہ نہیں لڑی جائے گی، وہ اپنا شہروں میں لڑی جائے گی. شہروں میں ہو رہا ہے نا، ایسے بات کر رہا ہے نا. وہ زاحل کے نسل اور فصل، یہ جنگ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تیرے شہر میں ہو رہا ہے، مطلب تیرے پورنستان میں ہو رہا ہے. ہاں، بیچ میں یہ کہہ دوں، دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹ دیکھنے والا قوم ہے پاکستان، گوگل سے جو رپورٹ آیا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا ہے پورنستان. تو تیرے پورنستان میں ہو رہا ہے، شہروں میں جنگ ہو رہا ہے، یا اپنا پیارا ہندوستان میں ہو رہا ہے؟ تو بات کر رہا ہے شہروں میں لڑی جائے، تو غزوہ ہند ہو رہا ہے یا غزوہ پاکستان ہو رہا ہے؟ تیرا اتنا بھی عقل نہیں ہے، تو بھونک کیا رہا ہے بیٹھے بیٹھے بچوں کے سامنے؟ آ رہی ہے زاحل کا ٹولہ، دیکھو کاؤنٹر کوشچن بھی نہیں کر رہا ہے کہ بھئی آپ ایسا کر رہے ہو تو جنگ ہمارے شہر میں رہا ہے. اس کا مطلب کیا؟ جو حضور نے فرما دیا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے. خوش نصیب لوگ تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کون اس خوش نصیب کا حصہ ہے. وہ زاحل، وہ ایک خوش نصیب لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے سامنے یہ زاحلوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، سب خوش نصیب ہے، اور تیرے حضور نے فرما دیا تو ہو رہا ہے نا. تیرے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، اپنا کیا خیبر پختونخوا، فلانا ڈنکانا، اپنا وہ کیا کوئٹہ میں، بلوچستان میں روز 40-50 مر رہا ہے. تو ہو رہا ہے نا غزوہ پاکستان. تیرے حضور نے تو کہہ دیا، وہ تھوڑا سا سپیلنگ مسٹیک ہو گیا تھا، وہ پورنی کے ہند کے جگہ وہ پورنی ہو تو
लिखा था, तू उसको पढ़ने की जगह हिंद पढ़ रहा है, समझ गया ना? तो गलती कर रहा है, क्योंकि भेजे में तो कुछ है नहीं तेरा। तो अभी भी तेरी बातों से तूने प्रूव कर दिया कि जंग हो रहा है तेरे शहर में, और तू कह रहा है कि गजवाए हिंद। तिसे तो मालूम पड़ता है ना, तो खुद ही प्रूव कर रहा है कि गजवाए पाकिस्तान पोरिनिस्तान हो रहा है। अब तो खुशनसीब सामने बैठा हुआ है तेरा जाहिलों का टोला। चल अब बंगला डाल इस बात पे। तो पाकिस्तान बना इसलिए, तो पाकिस्तान की फौज में जो भी खराबियां हों, जो भी कमजोरियां हों, हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, लेकिन यही फौज है जो गजवा हिंद लड़ेगी। यही फौज है जिसके पास आज हमारे एटमी हथियार है। यही फौज है जिससे पूरे दुनिया का कुफ्र सबसे ज्यादा खौफ खाता है। वो जाहिल के नस्ल और फसल, पर तेरे फौज में कितना मर्दानगी है, अब मैं तेरे को दिखा रहा हूं। तेरी लाल टोपी तो उतर गई, क्योंकि तूने खुद ही प्रूव कर दिया कि गजवाए पाकिस्तान हो रहा है। अब तेरे फौज का भी टोपी मैं उतार रहा हूं, ठीक है? जरा ध्यान से देखियो, जाहिल इंसान। आसमा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आपकी जानिब आती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, डीसीसी का 7वां इजलास हुआ कल, जिस तरह हम जानते हैं, और उसमें एक अहम पॉइंट जो था, बाकी दीगर पॉइंट्स भी अभी बताएंगे, एक अहम पॉइंट ये जो डिसीजन ली गई, वो कहा गया कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है अब जो है सपोर्ट करे अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अपनी मिसाल ले लेती हूँ, अपनी मुहिबुल वतनी का सबूत देने के लिए आज हम जो है सहाफी जो है या एक पाकिस्तान का शहरी जो है वो इस्लाह का मुतालबा करे या खामोश रहे? देखिए मेहर, मैं आपके प्रोग्राम पे आई, आपके कहने पे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मुझे मुहिबुल वतनी का अपना तमगा लेने की जरूरत नहीं है, और उन लोगों से खास तौर पे जरूरत नहीं है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के हैं, क्योंकि मैं आज ये बड़ी समझ के आई हूँ कि हमें वो बातें करनी चाहिए जो तल्ख भी हों और जो हकीकत में भी हों। इसलिए क्योंकि मुझे याद है जब बांग्लादेश की जंग हुई थी, इसी तरह की बातें हो रही थी, और लोग कहते थे कि वो लोग मुहिबुल वतन नहीं हैं जो बांग्लादेश के ऑपरेशन को कहते हैं कि ये सही नहीं है। मेरे वालिद साहब उस वक्त जेल में थे, बहुत सारे हमारे जानने वाले मुझे ट्रेटर के बच्चे कहते थे, मगर मुझे पता है कि फौजियों की साथ ये जो पॉलिसी है, फौजीज डफर्स हैं, डफर्स, फौजीज डफर्स हैं, डफर्स, फौजीज डफर्स हैं, डफर्स, फौजीज डफर्स हैं, डफर्स, फौजीज डफर्स हैं, डफर्स। ये आप समझ लीजिएगा, ये सियासी डफर्स हैं। अगर आप इनकी पॉलिसी पे चलेंगे जैसे आप चलते रहे हैं, तो मुल्क जो है वो किसी जगह नहीं जाएगा। मुझे नहीं परवाह अमेरिका क्या सोचता है, अफ्रीका क्या सोचता है। मुझे ये परवाह है कि हमारे मुल्क के लोग इस फौज से बचें, इस फौज से बचें, इस फौज से बचें, इस फौज से बचें, इस फौज से बचें। आज इस फौज ने हमें इस जगह पे खड़ा कर दिया है जहां पे इन्होंने टेररिज्म हर गली और मोहल्ले में फैला दिया है। ये उसको सपोर्ट करते हैं, ये उसको इनकरेज करते हैं, और ये डिबेट को डिट्रैक्ट करते हैं। इनके ऊपर एक इन्होंने पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी डाली हुई है। ये हमारे आज फौजी जर्नैल जो जाके सारा वक्त वहां पे गोल्फ खेलते हैं, और गोल्फ खेल के और उसके बाद ठट्टे मार के ये देखते हैं कि प्लॉट हमें कहां मिलेंगे। मुझे ये बताइए कि अब ये जो हुआ है कराची में, वहां पे शादी घर बना हुआ था। कभी ये सोचा है कि ऐसी सेंसिटिव जगह पे शादी घर बना हो? इन्होंने हमें सोचा है कि ये फौज ने हमें स्लेव्स बनाया हुआ है, ये फौज ने हमें स्लेव्स बनाया हुआ है, ये फौज ने हमें स्लेव्स बनाया हुआ है, ये फौज ने हमें स्लेव्स बनाया हुआ है। ये वक्त आ गया है इनको कहने को कि प्लीज, ये हाथ जोड़ते हैं, बैरक्स में जाओ, हमारे बच्चों को यहां पे रहने दो। हम यहां पे खून खराबा नहीं चाहते। अगर आपको बहुत चाहिए सर पे कोई ताज, तो जाएं जाके लड़के कोई जंग जीत के दिखाएं। अगर आपको बहुत चाहिए सर पे कोई ताज, तो जाएं जाके लड़के कोई जंग जीत के दिखाएं। अगर आपको बहुत चाहिए सर पे कोई ताज, तो जाएं जाके लड़के कोई जंग जीत के दिखाएं।
आपने कारगिल किया, आपने वो लाइट इन्फेंट्री वाले लोगों को मारा। आपको आदत पड़ गई है कि आप छोटे छोटे मुल्क के बच्चों को अपने सामने लाके उनको ह्यूमन शील्ड्स बनाते हैं। ना आप लड़ने जोगे हैं, ना आप मुल्क चलाने जोगे हैं, ना आप कोई पॉलिसी सही बनाने जोगे हैं। आप कब्जा ग्रुप हैं। ना आप लड़ने जोगे हैं, ना आप मुल्क चलाने जोगे हैं, ना आप कोई पॉलिसी सही बनाने जोगे हैं। आप कब्जा ग्रुप हैं। ना आप लड़ने जोगे हैं, ना आप मुल्क चलाने जोगे हैं, ना आप कोई पॉलिसी सही बनाने जोगे हैं। आप कब्जा ग्रुप हैं। इस मुल्क का कब्जा ग्रुप है। और सियासतदानों को और हमें सबको ये बात सही तरीके से कहना चाहिए। आप मुझे एग्जाम्पल्स पूछें, मैं आपको कई एग्जाम्पल्स उनके डफरपन की दे सकती हूँ। देखें, इनको बाकायदा तौर पे मैं चाहती हूँ माल रोड पे एक जुलूस निकले, हाथ बांध जुलूस। फौजी भाइयों, थैंक यू वेरी मच। अब घर जाओ, बैरक्स में बैठो, प्लॉट जो ले लिए बस ठीक है, पर आगे ना चलो। खाओ पियो पार्टी, हमारी जान छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सीधा और तल्ख जो है, तल्ख सच्चाई से हकीकत कह लीजिए, तल्ख नवाई कह लेते हैं, बेहतर है। मैं एडमिरल साहब आपकी जानिब आती हूँ। आप खुद एक फौजी हैं, आप आसमा साहिबा की किसी एक बात से डिसएग्री करते हैं? मैं जुर्रत नहीं कर सकता आसमा बीबी की किसी बात के साथ डिसएग्री करूं, क्योंकि इनके और मेरे ख्यालात बहुत नजदीक हैं। वो है जाहिल के नस्ल और फसल। आई बस समझ में, तेरे फौज में कितनी मर्दानगी है। हाँ, तेरे मुल्क के एक वकील, हाँ, इज मोस्ट रिस्पेक्टेबल। तेरी फौज का कपड़े उतार के रख दी, टोपी उतार के रख दी, और तू चला है ये फौज लेके, क्या सबसे ताकतवर फौज फलाना ढिंकाना। और तेरे सामने जो जाहिलों का टोला बैठा हुआ है उसको भी समझा, ये फौज लेके तू चला है, तो ये फौज तो तेरे मुल्क में ही तो गजबाए पोर्निस्तान कर रहा है। अभी अभी मैडम जहांगीर ने कह दिया ना कि भाई ये सब क्या बोले, वो टेररिस्ट को पालते हैं, तो वही टेररिस्ट तेरे मुल्क में गजबाए पोर्निस्तान कर रहा है। अब तू भौंक रहा है। तेरा भौंकना तो बंद नहीं होने वाला जिंदगी में। तेरी टोपी भी उतर गई, सब कुछ उतर गया, फिर भी तू भौंकेगा। इस हिमाकत में ना पड़ जाना कभी कि अपनी फौज की टांग घसीट के गिरा दो, ताकि उसके बाद पूरी मुस्लिम दुनिया की आबरू बिक जाए। वो है जाहिल के नस्ल और फसल। तेरे फौज का टांग घसीट के गिराने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही गिरा पड़ा हुआ है। मैडम आसमा जहांगीर ने कहा, सुनाई नहीं दिया तेरे फौज का हाल? हाँ, वो कह रही है ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई एक जंग लड़के तो दिखाए। हाँ, कोई जंग लड़ नहीं पाया। तेरे मुल्क में तो दुनिया भर की हिस्ट्री को डिस्ट्रॉट कर करके ये जाहिलों का टोला, पूरा मुल्क तो जाहिलों का टोला है 5% छोड़ के। हाँ? और ये कह रहा है कि मुस्लिम उम्मा की कहीं आबरू बिक ना जाए। वो चौन्नी के भाव बिक चुका है पहले से ही। समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, नजर नहीं पड़ रहा है। हाँ, तेरे नजर में पड़ेगा कैसे? तूने तो 2 आंखों से तेरा काम नहीं होता है, ऊपर से 2 और चढ़ाया है। 2-4 और चढ़ा ले, शायद तेरी नजर में आ जाए। सिर्फ मुसलमान दुनिया में तुर्की अब एक ऐसा मुल्क रह गया जिसके पास एक फौज है। बाकी पूरी मुसलमान दुनिया की फौजें खत्म हो चुकी हैं, या तुर्की है या पाकिस्तान है। और आने वाले वक्तों में आप देखोगे कि तुर्की और पाकिस्तान मिल जाएंगे। अब देखो, ये तुर्की का तलवा चाटना शुरू कर दिया। अकेले बस की बात नहीं है। जैसे वो कभी कभी चाइना का भी तलवा चाटता है ना, वो चाटता है, हमेशा चाटता है। और चाइना किस तरह से खून चूसता है वो तो पहले मैं एक वीडियो में दिखाया था। अभी तुर्की का ये टांग चाटना शुरू कर दिया है। चाट, तुम्हारा काम ही है 62-63 साल से सबका टांगे चाट के ही तू लोग जी रहा है, और भीख मांग मांग के। अमेरिका के टांगे चाट रहा है, चाइना के टांगे चाट रहा है, आजकल तुर्की का टांगे चाटने इसने नया सिलसिला शुरू कर दिया, नया एपिसोड। अल्लाह ताला की तकदीरों को समझो जो कुछ होने वाला है। अल्लाह के खिलाफ नहीं जाना। अल्लाह अहमक लोगों का रब नहीं है। यहाँ जाके इस जाहिल के नस्ल ने एक सही बात की है, पते की बात की है। अल्लाह जो है अहमक लोगों का रब नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। सारा तो अहमकों से भरा हुआ है खुद, और सामने जो टोला बैठा हुआ है, और 95%। इसी वजह से अल्लाह इन लोगों का रब नहीं है। रब किसका है?
इंडिया का, चाइना का, अमेरिका का, यूरोप का, इजराइल का, और जितने पूरे मुसलमान मुल्क है, अल्लाह उसका रब नहीं है, ये खुद इसको एडमिट कर रहा है। इतने टाइम के बाद ये पते की बात की है। यतफक्करून फी खल्क़ समावात वल अर्द, गौर व फिक्र करते हैं जमीनों आसमानों क्रिएशन पे, एनालिसिस करते रहते हैं हर वक्त और कहते हैं रब्बना मा खलक़ता हज़ा बातिला, अल्लाह आपने कोई चीज बेकार नहीं पैदा की। जीनियस लोग होते हैं। इस जाहिल के नस्ल के हिसाब से जो अहमक होता है वो जीनियस होता है। दरअसल वो कहना ये चाह रहा है और बिल्कुल सही कह रहा है, अहमकों का टोला। अल्लाह तो कीड़े मकोड़ों का भी रब है वैसे तो, लेकिन जिनका सही मानों में वो रब है वो बंदा मोमिन होता है, शेर और दलेरों का रब, जिनकी बात सुनता और जिनकी बात मानता। ये बात भी ये बिल्कुल सही कह रहा है। अल्लाह जो होता है वो दलेरों का रब होता है। जैसे कि इंडिया का, चाइना का, अमेरिका का, यूरोप का, इजराइल का दलेर कौम है, और इसका फौज जो है कितना दलेर है अभी भी दिखाया मैंने। और ये जो जाहिलों का टोला है, कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं, तो नेचुरल बात है, तो अल्लाह तो इनका रब हो ही नहीं सकता। ये खुद एडमिट कर रहा है और खुद ही प्रूफ भी कर रहा है। सबसे मजे की बात है, देखो क्या इंसान है, वाह भाई वाह। जियो लाल टोपी वाले। अब इस जाहिल को मैं फ्री में एक मशवरा देता हूँ, ये सबको कन्विंस करे, वो जाहिल के नस्ल सबको कन्विंस कर पूरा मुल्क को कि दिन रात बैठ के पॉर्न साइट देखे, तो देख बहुत दलेर कौम बन जाएगा। क्योंकि नाम तो पॉर्निस्तान पड़ ही गया है, तो उसको मजबूत कर, देख क्या मजा आएगा फिर बाद में। तो आंख कान नाक होश खोल कर रहा है, वक्त नहीं है तुम लोगों के पास। ये बात भी ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल वक्त नहीं है। क्योंकि ये कौम जो है 1 घंटे का पैसा दिया है साइबर कैफे में बैठ के वो साइट देखने के लिए। अब घंटा पूरा होने जा रहा है, 2-3 मिनट बाकी है। अगर जल्दबाजी ना की, जल्दी ना की, तो साइबर कैफे वाले गर्दन पकड़ के बाहर निकाल देगा। इसलिए कह रहे कि बिल्कुल वक्त नहीं है, जल्दी फटाफट देख लो, जितना हो सके देख लो। अहमक और जाहिल लोगों के पास अब कोई वक्त नहीं है। ये सुमन बुकमन उम्मियन, आंख नाक कान बंद किए बंदा गूंगे बहरे जो बैठे हुए हैं, इनकी सफाई का वक्त आ गया। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, अहमक और जाहिलों के पास वक्त नहीं है। क्योंकि अहमक और जाहिल वो सिस्टम ऑन करते करते 15 मिनट लगा देता है और शट डाउन करते करते ही 15 मिनट लगा देता है। इसी वजह से बिल्कुल वक्त नहीं है, क्योंकि अभी तो गर्दन पकड़ के बाहर निकालेगा। और साइबर कैफे वाला, और ये कह रहे ना सफाई का भी काम शुरू कर दिया, क्योंकि पैसा तो है नहीं, है तो सब भिखारी, अब पैसा तो दे नहीं पाएगा। अब साइबर कैफे वाला उसको पकड़ के पूरा वो कैफे साफ कराएगा, झाड़ू लगाएगा। इसीलिए कह रहा है कि अब सफाई का वक्त आ गया है कि भाई रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जेब में तो पैसा नहीं है, अब सफाई करोगे तो जान छूटेगी। हम नहीं करेंगे, रब करेगा, हम सिर्फ तमाशा देखेंगे। अभी तक भौंक रहा था इन लोगों की सफाई करने का वक्त आ गया, और अभी क्या भौंक रहा है कि हम नहीं करेंगे, जो करेगा अल्लाह करेगा, हम खाली बैठे तमाशा देखेंगे। सारी हवा निकल गई। सफाई उपाय का अभी तक जो भौंके जा रहा था, इन लोगों को जो खून गर्म करा रहा था, बस सारे ठंड पे गया। तो हम पहले वार्न कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का अपना तरीका है काम करना। जापान में अल्लाह ने खुद सफाई की ना, अल्लाह ताला की पकड़ से इंसान डरे। उनको तकब्बुर यह था जापान वालों को कि हमने 10 रेक्टर स्केल तक हमने इमारतें बना ली हैं जो नहीं गिरेंगी। अल्लाह ने कहा बड़ी अच्छी बात, अल्लाह ने जमीन को झटका दिया, उसके बाद पानी फेंका और एटम बम उनके ऊपर बिठा दिए। उनके एटमी रिएक्टर किसी वक्त भी फट सकते हैं। और जापान सबसे ज्यादा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बात करता था। अल्लाह की पकड़ देखो, अल्लाह ने उनको अपने एटमी प्रोग्राम में फंसा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ जो बोलेगा मार खाएगा। वो जाहिल की नस्ल और फसल, चल तेरा ये लॉजिक मान लेते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा ऐसा होगा। तो एक पिछले साल तेरे मुल्क में जो बाढ़ आया था, जो 2 करोड़ को आधा मुल्क बहा के ले गया था, तो उस किस वजह से? हाँ अच्छा, तू अमेरिका, इजराइल, इंडिया के खिलाफ भौंकता रहता है, इसी वजह से ना होगा ही नहीं तेरी हिसाब। अगले इस साल भी आने वाला है, तू चिंता मत कर,
वेट एंड सी। तो जापान में तो आया था 10% उसकी जो अपना मुल्क का जो टोटल इलाका है उसके ऊपर इफेक्ट हुआ था। तेरा तो आधा मुल्क बहा के ले गया था, वो क्यों हुआ था? उसका जरा जवाब दे देना बाद में, ठीक है? खैर तेरी तो टोपी उतर गई है, बाद में फिर दोबारा पहन लेना। नेक्स्ट एपिसोड में मैं तेरा टोपी फिर उतारूंगा। वाइंड अप करते करते मैं इस जाहिल के नस्ल और फसल को इसके बारे में एक कमेंट करूंगा कि अभी तक देखो ये बैठा हुआ था, गर्दन एक ही तरफ टेढ़ी है। वो जो कहावत है ना, जो तुम नाली के अंदर रखो 12 साल तक टेढ़ी की टेढ़ी रह जाती है, तो इसका भी हाल वैसा है। हालांकि वो दूसरी तरफ भी एक जाहिलों का टोला है और उस तरफ देख ही नहीं रहा है। तो अब कंपेयर कर लो क्या है ये।